Dear students, today we are going to discuss the remaining part of civics lesson political parties. Here we would discuss about the national political parties. Dear students, the countries or the democracies where the federal system is followed have the two type of political parties. Sir, what do you mean by federal system? A system of government where there are at least two levels of government. One for the whole country, that is known as the central government, and another for the different states of the country, that is known as state governments. You know that. In federal system, only one type government cannot work properly. You know that in India this system is open. In our country there are many political parties, and out of them 7 political parties are national political parties as per the data of 2017. As per the data of 2017, the Election Commission of India provides some special facilities to large and established parties. Election Commission of India gives a unique symbol to these parties candidates when they contest election. These national political parties also get special rights or privileges and some other special facilities as a recognized party. But for becoming a national political party, Election Commission of India has laid down a particular criteria. Sir, what is the criteria? A party that at least gets 6% of the total votes in an election of a state legislative assembly and wins 2 seats is recognized as a state party. एक पार्टी जो चुनाव में जाती है और वो किसी स्टेट असेंबली की इलेक्शन में 6% वोट्स प्राप्त करती है और एटलीस्ट 2 सीट्स जीत पाती है, सच ए पार्टी इज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. जैसे इसी स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ हरियाणा में आपने सुना होगा जननायक जनता पार्टी won the 10 seats and it got more than 6% vote in state assembly election. Now it is recognized as a state political party. Second, sir, what is the criteria for a national political party? A political party that contests election for Lok Sabha and win 6% vote in the Lok Sabha elections and any 4 seats is given the status of national political party. इसके लिए एक और क्राइटेरिया है. सपोज ए पार्टी गेट्स सक्सेस टू विन 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन and 4 seats, it is given the status of national political party. But another criteria is that if the party wins 4 seats but fails to get 6% vote in the Lok Sabha election, then the party is given an opportunity to get 6% vote in the 4 state assembly elections. Then it is given the status of national political party. As per 2017, 7 political parties are the national political parties. The first one is the Indian National Congress, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. आप सभी जानते हैं, it is known as Congress. It was founded in 1885. It was founded by the British administrator, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए ओ ह्यूम के द्वारा ये सेटअप हुई. इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे. इट्स फर्स्ट हेड वाज WC बैनर्जी और यू कैन से व्योमेश चंद्र बैनर्जी. आफ्टर इट्स फाउंडेशन, आफ्टर इट्स सेटअप, इसके सेटअप होने के बाद में इस पार्टी में बहुत बार स्प्लिट्स हुए, बंटवारे हुए. ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो आज़ादी के बाद से नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल प्ले किया. अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जब जवाहरलाल नेहरू देश आज़ाद होने के बाद में इंडिया के PM बने, तो इस पार्टी ने उनकी देख रेख में इंडिया को मॉडर्न बनाने, सेकुलर मीन्स टू टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाने में बड़ा रोल प्ले किया. बट दिस पार्टी फेल्स to win Lok Sabha election 1977 because party has implemented national emergency in 1975. और जब 1975 में जो emergency लागू की गई, उसके बाद में 1977 में elections हुए, तो the party fails to win the election. Even at that time Indira Gandhi
हु वाज द बिग फेस ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा थी, वो भी चुनाव हार गई। देन 1980 टू 1989 फिर इसने रूल किया, बट 1989 के बाद में इसकी धीरे धीरे सपोर्ट घट गई। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, अर्थात ये नहीं लेफ्टिस्ट है नहीं राइटिस्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट? नहीं किसी पॉलिसी के 100% अगेंस्ट और नहीं 100% फेवर में। ये पॉलिटिकल पार्टी देश को एक सेकुलर कंट्री, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन चाहती है। इस पॉलिटिकल पार्टी ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया। आपने इको में भी पढ़ा है, 1991 में इसी पॉलिटिकल पार्टी ने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इंडिया में लागू किया, और ये डाटा अब चेंज हो गए हैं। आप पाओगे एट प्रेजेंट दिस इज द अपोजिशन पार्टी ने लोकसभा। देन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी was set up in 1980. It was set up by श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अर्लियर इट was known as भारतीय जनसंघ। ये पार्टी भारत को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है। इस पार्टी की जो टीचिंग्स हैं वो एंशियंट कल्चर और एंशियंट वैल्यूज से ली है। ये पार्टी हिंदुत्ववाद में बिलीव करती है, ये कल्चरल नेशनलिज्म में बिलीव करती है। ये पार्टी, और ऑलरेडी आप देखते हैं आर्टिकल 377 और आर्टिकल 35A को ऑलरेडी हटा दिया गया। अर्लियर इसकी थ्योरी थी कि J&K को कंप्लीट इंडिया में मर्ज किया जाए, ऑलरेडी आपने देखा ये हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 35A था वो आपने देखा होगा, वो हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स सभी के लिए इंडिया में इक्वल राइट्स हैं। ये पार्टी चाहती है कि धार्मिक परिवर्तन अर्थात मैनी पीपल हु वांट्स टू कन्वर्ट दियर रिलीजन, उसके ऊपर बैन चाहती है। इस पार्टी की सपोर्ट 1990 के बाद में बढ़ी। ये पार्टी अर्लियर नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया और अर्बन एरियाज तक लिमिटेड थी, धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ी। फर्स्ट टाइम 1988 में अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, दिस पार्टी गोट सक्सेस टू फॉर्म गवर्नमेंट इन सेंटर विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज अलायंस, जिसका नाम NDA रखा गया। और फिलहाल भी आप देखते हैं दिस पार्टी इज रूलिंग इन सेंटर एंड नरेंद्र मोदी इज PM एंड अमित शाह यू नो दैट इज होम मिनिस्टर एंड यू नो दैट हु इज हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टी। तो आपने देखा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुजन समाजवादी पार्टी, इट वॉज सेटअप इन 1984। इट्स फाउंडर वॉज काशीराम। एट प्रेजेंट इट्स हेड इज बहन मायावती। ये पार्टी बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, OBC और धर्म के आधार पे जो माइनॉरिटी में उन लोगों से, इस पार्टी ने अपनी इंस्पिरेशंस कहाँ से ली? टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नेईकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। ये पार्टी दलित्स और ऑपरेस्ड मीन्स एक्सप्लॉइटेड पीपल ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है, और ये पार्टी काफ़ी UP और अदर स्टेट्स में फेमस रही है। देन यू हैव टू सी CPI अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इट वॉज सेटअप इन 1995। ये कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की थ्योरी में बिलीव करती है। ये पार्टी सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। ये पार्टी कम्युनलिज्म मीन्स पॉलिटिक्स ऑन द नेम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, और सक्सेशनिज्म मीन्स देयर शुड बी नो फैमिली पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स। ये पार्टी चाहती है देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वर्किंग क्लास के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। ये पार्टी 1964 में स्प्लिट होकर एक और पार्टी बनी, CPIM। अब आप देखेंगे CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये CPI से स्प्लिट होकर 1964 में बनी। ये भी कार्ल मार्क्स और लेनिन की थ्योरी बिलीव करती। ये बिलीव करती है सोशलिज्म मीन्स ऑल द प्रॉपर्टी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी। ये सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। ये चाहती है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे से हो और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को मिले। नेक्स्ट आप देखेंगे NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इट वाज फाउंडेड इन 1999। ये कांग्रेस से टूट के बनी। इट्स हेड इज शरद पवार। ये डेमोक्रेसी के फेवर में। गांधी एंड सेकुलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। ये सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं। ये पार्टी चाहती है देश की कोई भी बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस जैसे पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उसी व्यक्ति को मिले जो नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। इट मीन्स वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, वो व्यक्ति नहीं
जो किसी दूसरे देश में जन्मा और इंडिया की सिटीजनशिप लिए, उसको ये पोस्ट नहीं मिले। और इसका महाराष्ट्र में बड़ा रोल रहा है। फिलहाल भी आप पाएंगे ये महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार है उसमें एक बड़ी पार्टी के तौर पे ये काम कर रही है। 6th व 7th वन आपकी बुक में मेंशन होगा या मेंशन नहीं है, उसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इट वाज फाउंडेड इन 1999। इट्स हेड इज ममता बनर्जी और आप देखेंगे इट इज़ रूलिंग फ्रॉम 15 to 20 years in West Bengal. Now we are going to discuss about state parties. बेटा देर आर मैनी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ ऐसी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका वजूद, जिनके प्रेजेंस मोर देन वन स्टेट में, जैसे समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट पार्टीज ऐसी हैं जो एक स्टेट तक इसी में हैं, जैसे बीजू जनता दल ओडिशा, ये पार्टी। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हरियाणा की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और आप कहेंगे जेजेपी, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, इसी प्रकार यूपी की स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज आप देखेंगे राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, इसी प्रकार बिहार की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। इसी प्रकार महाराष्ट्र की आप देखेंगे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे आपको मिलेगा शिवसेना। कौन सी मिलेगी? शिवसेना। इसी प्रकार ओडिशा में बीजू जनता दल। इस प्रकार यहाँ पे जो नाम हमने अभी पढ़े ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है पर्टिकुलर स्टेट की। इसी प्रकार झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन की पार्टी। ओके डियर स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट वी वुड डिस्कस नेक्स्ट डे।